Good morning, everyone. I am Dr. Piyush Nalle, Assistant Professor, Department of Commerce, Shankarlal Khandelwal, Arts, Science and Commerce College, Akola. I welcome all of you at our live webinar on Wealth Awareness Program, organized by Shankarlal Khandelwal, Arts, Science and Commerce College, Akola, and Advisors Organization. As we all know, wealth awareness and financial management is the most important part of every individual life. It is the only way to utilize our earning in a proper way throughout the whole life, even after the retirement. This webinar is going to be a package of improving our financial awareness and will provide us a complete guide for a financial planning, tax planning, and investing for a peaceful retirement. Today, we have with us Dr. Jagdish Sabu sir, Principal of Shankarlal Khandelwal Arts, Science and Commerce College, Akola, as a president of a webinar. Also, we have certified financial and corporate trainer, Ms. Diksha Gogia who will guide us with this webinar. Now I request our principal, Dr. Jagdish Sabu sir, to share his greeting for the webinar with us. Over to Sabu sir. Good morning. Thank you, Nalle sir. Hello. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Good morning to all. Today, the webinar by AMFI and Center for Individual and Organizational Learning on the subject Principle to Achieve Your Financial Goal, coordinated by IQAC and Department of Commerce, Shankarlal Khandelwal College, Akola. I welcome all of you. First of all, I welcome the trainer Diksha Gogia. Along with her, I welcome Atulji Sathe for giving this webinar for our organization, our teachers and students. All of us know now the financial planning has become the need of this global world or society. So all of us know that being wealthy means healthy, or being healthy means wealthy. So I feel that while living in this competitive world, everybody needs to set their goals, financial goals, that what is their need, how much they should earn, and how much they should save, and how they should save, invest their saving. So far as all these things are concerned, I feel the Department of Commerce as well as Center for Individual and Organizational Learning are well-versed, knowledgeable personalities. So, without taking much more time, I would like to let them start the seminar. But before that, I appeal all the individuals, all our organizational members, all our students who are going to be future citizens of this nation, that they should think on this financial management. All of us know that nowadays the days are gone that a nation can overtake, or the nation can rule on other nation by muscles. But these are the days when a nation or the nations rule others on economical ground. And all this economical ground, strong economical position of the nation depends on every individual who lives in that nation. If the citizen
or the people of that nation are very well learned or very well competent about the financial management, definitely that nation comes to be the economical power. And that too gives the benefits to the nation. On individual level, I personally feel that everybody should have strong financial position so that one new term has nowadays come into the existence, financial freedom. What is meant by this financial freedom? Financial freedom is the thing that you should never be scared of your financial management or financial, what we call, treasure. You should have the freedom from the financial worries. And if you want the freedom from financial worries, you should know how to make your financial position strong. And that's why I feel that Dr. Piyush Nalle, Department of Commerce, has arranged this program to make each and every individual, organizational member and the students financially strong. And that's why the subject of this webinar is principle to achieve your financial goal. So without taking much more time, once again, I welcome all the participants who have joined online to this webinar. And I thank Diksha Gogia Madam, Sri Atulji Sathe Sir for sponsoring this program, our institution, every individual and all organization. So thank you very much. I once again welcome you, sir, in this program. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now over to Atul, sir. Good morning, everyone. Warm welcome to this session of wealth awareness. At outset, let me take this opportunity to express my sincere gratitude towards Khandelwal College of Arts, Science and Commerce, the management of the college, Principal Dr. Jagdish Sabu sir, faculty coordinator for this particular session, Piyush sir, and advisors organization for providing this opportunity to me to express my thoughts on various aspects related to financial literacy. तो हम जब कॉलेज में सब लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग लिटरेसी की बात करते हैं. वी टॉक अबाउट एजुकेशन एंड एकेडमिक्स. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस एंड कंसंट्रेट ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. तो एक जमाने में अगर हम लोग भारत देश की बात करते हैं तो हम लोग लिटरेसी से जूझ रहे थे. अब वो लिटरेसी पर हम लोग ने मात कर ली है, उस पर हम लोग ओवरटेक कर लिया है. नाउ द मॉडर्न प्रॉब्लम वी हैव इज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. एंड प्रिंसिपल सर ने रूपेश सर शायद कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है. आप सबको मेरी आवाज आ रही है सही से? Yes, sir, you are audible. आ रही है सर. अच्छा, रूपेश सरांच्या इकडे काहीतरी प्रॉब्लेम असेल तरी जरा नीट चेक करा. ओके. सो मॉडर्न प्रॉब्लम जो है फाइनेंशियल लिटरेसी का, प्रिंसिपल सर ने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में इसके बारे में हमें जानकारी दी है. तो वी विल बी फोकसिंग ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स. In today's session, for next 45 to 50 minutes, what I'm going to touch upon are various aspects related to financial planning, the do's and don'ts, the rights and duties, और कौन से ऐसे common mistakes है जो हम करते हैं जिससे हमको बचना चाहिए. As we always say कि कोई भी चीज अगर हम लोग जर्नी कोई भी शुरुआत कर रहे हैं तो वो जर्नी में बीच बीच में कौन से ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कौन कौन सी परेशानियां आ सकती है, उसके बारे में हम आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं. मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको बीच बीच में देते रहूंगा. आप सभी के लिए थोड़ा से क्वेश्चंस भी मैंने कुछ डिजाइन करके रखे हैं. सो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू कंट्रीब्यूट दैट बाय आइदर अनम्यूटिंग योरसेल्फ और पुटिंग इट इन द चैट बॉक्स. मेनी ऑफ अस हैव जॉइंड हियर आवर फैकल्टी मेंबर्स. हमारे लेक्चर्स में हम बच्चों को सवाल पूछते रहते हैं, लेकिन आज हम थोड़े से अलग रोल में जा चुके हैं. आज हम पार्टिसिपेंट्स हैं. तो आपसे भी यही आशा करूंगा कि आप, जैसे हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि बीच बीच में थोड़ा सा कमेंट करते रहें, बीच बीच में थोड़े से आंसर्स देते रहें, वैसे आज अगर आप थोड़ा रिस्पॉन्ड करते रहेंगे तो
I will also have a feel of some kind of interaction going on between all of you and us. Of course, कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं की है, वो सोच रहे हैं इसके बारे में। तो ये भी एक विजनरी चीज है खंडेलवाल कॉलेज की कि फ्यूचर में जो चीजें बेनिफिट करने वाली हैं स्टूडेंट्स को, उसके लिए भी उन्होंने स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करवाया है, ताकि ये स्टूडेंट्स ही अपना मैसेज जो है वो बाकी के अपने फ्रेंड्स की तरफ ले जा सकते हैं। एंड वी विल हैव ओवरऑल सिचुएशन वेयर पीपल आर लिटरेट अबाउट देयर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग मेरे प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस बीच में पूछते रहूंगा, आपसे आशा करता हूं कि आप उसका जवाब मुझे देते रहेंगे। जहां तक लैंग्वेज का सवाल है, मैं बीच बीच में हिंदी, इंग्लिश, थोड़ा बहुत अगर जरूरत पड़ी तो मराठी का भी यूज करूंगा। आप अगर कंफर्टेबल है तो प्लीज मुझे इंडिकेट कीजिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप इमीडिएटली उसको चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वापस वो चीज को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि ये जो 45-50 मिनट्स आज हम साथ में बिताने वाले हैं, एट द एंड ऑफ 45-50 मिनट्स आपको भी ये लगना चाहिए कि भाई हमने अगर ये प्रोग्राम अटेंड किया है आज, तो हमें इसका कुछ फायदा हुआ, हमें कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नई जानकारी उसके वजह से हमें मिली। तो अगर आप सब रिस्पॉन्स देते हैं तो डेफिनेटली आप सब लोग को भी बेनिफिट होगा। आपके क्वेश्चंस अगर कुछ है तो डेफिनेटली आप वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और उसका जवाब मैं डेफिनेटली एंड ऑफ द सेशन में या सेशन के दौरान भी दूंगा। एंड ऑफ द सेशन भी हम लोग कुछ 5-10 मिनट आपके क्वेश्चंस कमेंट्स के लिए रिजर्व रख सकते हैं। सो ये इंट्रोडक्शन तो काफी हो गया। नाउ वेरी क्विकली वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम। लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड वी कैन स्टार्ट ऑफ। So once again, warm welcome to all the participants who have joined in good numbers in the morning, and it's a sunny morning at least here in Mumbai. आप सभी लोगों से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मैं मुंबई से जुड़ चुका हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज हम सभी लोग एक बड़े फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बिगर फैमिली कॉल्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। So we are bringing this program to you on a virtual platform as part of Investor Protection Fund initiated by Bombay Stock Exchange for that matter. So whenever we talk about securities market, whenever we talk about capital markets in India, तो मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये सबके ग्रोथ और डेवलपमेंट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या रोल प्ले किया है। We all are aware about that. The second name that comes to our mind when we talk about capital markets and securities market is Securities and Exchange Board of India. So कहीं ना कहीं पे आज हम Securities and Exchange Board of India का क्या रोल होता है कैपिटल मार्केट्स में, वो हमारे लिए कैसे नए नए इनिशिएटिव्स लाते हैं, और कंज्यूमर के लिए या इन्वेस्टर के लिए कैसे कन्वीनियंट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। द थर्ड थिंग आई वांट टू हाईलाइट is Krisha Foundation, which we are bringing this program to you in association of Krisha Foundation as well. So I thought at the beginning itself, I should bring all these aspects to your mind, all these aspects to your consideration, so that जब हम program start करेंगे हमें पता है कि हम कौन से बड़े चीज का हिस्सा आज यहाँ पर बनने जा रहे हैं। As I am excited for this particular session, I'm sure each one of you who is attending this particular session is also equally excited. तो चलो एक छोटे से क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। Let's talk about agenda that I have set. मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि क्या एजेंडा आज का हमारा होने वाला है। So let's start with the first question. जब हम richest person in the world की बात करते हैं, जब उनके बारे में सोचते हैं, so which names come to your mind? अगर आप कोई अनम्यूट करके बोल सकता है, कौन से नाम हमारे सामने आते हैं? पीयूष सर ने इमीडिएटली अनम्यूट कर दिया है। वॉरेन बफेट। मिलिंद सर कह रहे हैं वॉरेन बफे। अंबानी की बात चल रही है तो वॉरेन बफे जी का नाम पहले आएगा। पीयूष सर कुछ और ऐड करना चाहेंगे? एनीवन इन द चैट बॉक्स इफ यू वांट टू ऐड समथिंग? अंबानी ऑफ कोर्स हम लोग बात करते हैं। टाटा इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर कंट्रीब्यूशन। तो एलन मस्क की बात कर रहे हैं, टाटा बिरला की बात कर रहे हैं, संजना जी ने जवाब दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस। और इस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करते रहिए तो आपको भी मजा आएगा और मुझे भी ये सेशन में बहुत मजा आने वाला है। सो सवाल ये नहीं है कि टॉप 10 पीपल कौन है, तो आप सभी के लिए ये लिस्ट मैंने बना के रखी है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये नोट करना है कि नॉट हु इज नंबर 1, हु इज नंबर 2, दैट रैंकिंग विल कीप ऑन चेंजिंग, देयर वेल्थ विल कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन ये जो बहुत बड़ा नंबर हम उनके सामने देखते हैं, $115 बिलियन,
जिसको हम अगर रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये और मे बी 65-70 टाइम्स फिगर बड़ी हो जाएगी, और फिर हम जीरो काउंट करते रह जाते हैं कि भाई इनके पास इतना पैसा है, इतने करोड़ों रुपए के मालिक ये लोग हैं। तो सवाल हमारे माइंड में ये आता है कि इतना पैसा इनके पास आता कहां से है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ देयर वेल्थ? हाउ डू दे क्रिएट सो मच ऑफ वेल्थ? उनको कौन सा एक ये सक्सेस मंत्र मिल चुका है जो अभी तक हमारे लिए थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है? सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू अनफोल्ड, वैष्णवी जी ने भी आंसर दिया है, जेफ बेजोस। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू अनफोल्ड इज अ सक्सेस मंत्र टू क्रिएट वेल्थ फॉर आवरसेल्व्स। अब ये सभी जो रिचेस्ट लोग हैं, हम टाटा अंबानी की बात करते हैं या और भी कई लोगों की बात करते हैं, ऑल ऑफ देम हैव 24 आवर्स. बघा त्यांच्याकडे पण 24 तासच आहेत, आपल्याकडे पण 24 तास आहेत. ते पण खूप मेहनत करतायत, आपण पण खूप मेहनत करतोय, बट दे हैव रीच्ड एट अ डिफरंट लेवल compared to where we stand today. So let's understand and unfold the mantra for creating wealth for ourselves. And I will also explain why we are talking about this particular mantra in today's session. तो एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं कि इनकी जो कंपनियां है ये एक चेस बोर्ड की तरह है. मैं आज बहुत सिंपल लेवल पे ये प्रेजेंटेशन रखने वाला हूं ताकि सभी लोग इसको समझ पाए. स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज हैं, फाइनेंस के फैकल्टीज हैं, आर्ट्स के फैकल्टीज हैं, साइंस के फैकल्टीज हैं, सभी लोग इसको समझ पाएंगे. सो एक कंपनी मान के चलते हैं ये चेसबोर्ड की तरह है. चेसबोर्ड टिपिकली है 64 स्क्वायर्स. हम सिंप्लिसिटी के लिए मान के चलते हैं कि 64 स्क्वायर का हर एक स्क्वायर का वैल्यू टुडे इज 1 रुपी. नाउ इफ आई वांट टू परचेस half the company, 50% of the company's stake, I will have to shell out 32 rupees. 32 स्क्वायर 1 रुपए के हिसाब से I will contribute 32 rupees in the pocket of the company जब कंपनी को अपने कारोबार की शुरुआत करनी है, whenever they want to raise capital. So I have contributed 50% of the shares, theoretically मान के चलते हैं as an example. Now ये जो 32 rupees आपने contribute किए हैं, ये पैसे का यूटिलाइजेशन करके कंपनी विल स्टार्ट रनिंग देयर बिजनेस, देयर सेल्स विल इंक्रीज, देयर प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज. फ्रॉम अननोन कंपनी दे विल नाउ बिकम नोन कंपनी. So because of this, the share price of the company will keep on rising. It will have a positive impact on the share price. So remember, we contributed 1 rupee. We started with 1 rupee. Now the share price, let us assume, has become 10 rupees. तो 32 स्क्वायर हमारे पास है, 32 स्क्वायर्स इंटू 10, हमारा वेल्थ आज के तारीख में बन जाएगा 320 रुपीज. सो वी स्टार्टेड ऑफ विथ 32 रुपीज एंड इन वेरी शॉर्ट टाइम बाय इन्वेस्टिंग इन शेयर्स वी कैन मल्टीप्लाई आवर वेल्थ. बट कहीं ना कहीं पे हमारे माइंड में ये सवाल होता है कि ये सही कंपनीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाउ डू वी आइडेंटिफाई राइट कंपनीज टू इन्वेस्ट? How do we identify the right industries to invest? That also I am going to discuss with all of you in the few slides which are coming up. So hold on your excitement a little bit for that. We will proceed further with one more small example. अब पिछले 16-17 महीने की बात करते हैं तो हम पैंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं. Because of that only we are virtually connected. Once things are normal, I will be more than happy to visit Akola, your college, and conduct these kind of programs in a physical mode. But ये पैंडेमिक सिचुएशन में क्या आप चैट बॉक्स में इंडिकेट कर सकते हैं या अनम्यूट करके बता सकते हैं कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपने यूज किए हैं, पहले हम उसका इस्तेमाल नहीं करते थे? एनीवन इन द चैट बॉक्स? कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ये कोरोना और पैंडेमिक में हमने यूज किए हैं, पहले हम उसको इतना इस्तेमाल नहीं करते थे? ओके, सैनिटाइजर सर. सैनिटाइजर, वेरी गुड. पीयूष सर कह रहे हैं. वैष्णवी मैडम बहुत बहुत क्विकली जवाब आ रहे हैं, तो सॉरी अगर मैं किसका नाम मिस कर जाता हूँ. संजना मैडम कह रहे हैं मास्क. ओके, सैनिटाइजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वी ऑल नो दैट मिस मास्क एंड सैनिटाइजर इज गोइंग टू बी इन डिमांड. इम्यूनिटी बूस्टर्स, वेरी गुड. इम्यूनिटी बूस्टर्स, वेरी गुड. तो बहुत सारी दवाइयां भी हमने इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल किया है, बहुत सारी दवाइयां हमने इस्तेमाल की है. तो हम सब जानते थे कि ये प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पे डेफिनेटली डिमांड में होने वाले हैं. इनका प्रोडक्शन अगर हम करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा. तो मुझे बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दवाई बनाने की कंपनी स्टार्ट कर दी? कोई ऐसा है क्या यहाँ पे?
जिन्होंने सैनिटाइजर बनाने की कंपनी स्टार्ट कर दी। तो आप सभी लोग कहेंगे कंपनी स्टार्ट करना ये कोई खेल थोड़ी है, ये कोई इतना इजी चीज थोड़ी है। और वही चीज मैं आपको समझाने की यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ कोशिश कर रहा हूँ दैट not every time setting up a business is a good idea, but identifying right business to invest in also is helpful for creation of wealth. तो हर बार हम एंटरप्रेन्योरशिप और नए कमर्शियल वेंचर से ही पैसा कमा सकते हैं ऐसा नहीं है। राइट इंडस्ट्रीज, राइट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके हम डेफिनेटली पैसा अर्न कर सकते हैं। अब सवाल आपके माइंड में ये भी जरूर आता होगा दैट व्हाई आर वी डिस्कसिंग एंड टॉकिंग ओनली अबाउट शेयर्स, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट ही हमको करना है, वेल्थ ही हमको क्रिएट करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ही अगर हम सोच रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट जैसे ऑप्शंस अवेलेबल है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, वी हैव सो मेनी, गोल्ड इज देयर, रियल एस्टेट इज देयर, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आज हमारे पास है। मैंने तो कुछ ही एग्जांपल्स दिए हैं। द रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स एट दिस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज बिकॉज वी आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। अगर हम हमारे पेरेंट्स के जनरेशन की बात करते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन की बात करते हैं, तो खूब सुखी लोग होते थे। देयर एस्पिरेशंस वर लिमिटेड, देयर रिक्वायरमेंट्स वर वेरी लिमिटेड। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से कह लीजिए या फॉर व्हाट एवर रीजन, वी हैव मेनी मोर थिंग्स एज एस्पिरेशंस, वी रिक्वायर मोर थिंग्स टू सर्वाइव एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अगर हमारी जरूरतें मॉडर्न हो चुकी है, अगर नई जरूरतें हमको सेटिस्फाई करनी है, तो इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव जो हम यूज कर रहे हैं वो भी नया होना जरूरी है। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग थ्रू मॉडर्न इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स। तो आज हम सिक्योरिटी मार्केट की बात करने वाले हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स जो आपको स्लाइड में दिख रहा है पिछले 15 साल में बहुत फेमस हो चुका है। आजकल हम कई जगह पे जाते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स। तो अगर हमको शेयर्स परचेस करने हैं तो वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर वी कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट्स और वी कैन इनडायरेक्टली इन्वेस्ट अवर मनी इन शेयर्स बाय रूटिंग इट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो लमसम स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान का भी इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड दैट इज हाउ we can definitely make investments in shares. तो why to invest in shares, इसका तो जवाब मैंने आपको दे दिया। अब how to invest in shares, इसके बारे में भी हम स्लाइड पे देख रहे हैं। तो ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट जो है, इसका कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्या है, ये कहीं ना कहीं पे जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे पास सरप्लस फंड है, पैसा है थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम खुद को कहलाएंगे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, जिसको इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है और एबिलिटी भी रखता है। नाउ ऐसे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने का मौका ये प्राइमरी मार्केट के थ्रू मिलता है, जहां पे कंपनीज आर रेजिंग कैपिटल फॉर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। सो दे इशू वेरियस सिक्योरिटीज, शेयर्स के फॉर्मेट में सिक्योरिटी इशू होती है, डिबेंचर्स के फॉर्मेट में होती है। इन दिस फॉर्म्स दे इशू सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक and we become security holder। तो हमारा प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर से लेके सिक्योरिटी होल्डर बनने का जो जर्नी है वो प्राइमरी मार्केट कंप्लीट करता है। Why we are saying this is a primary market? Because ये हमारे पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआती दौर पे हमें सामने आता है। So we call it as a primary market because that's the first step we have to take whenever we are thinking about investments and फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन ये जो हम इन्वेस्टर्स होते हैं ना, हम सभी को एक्साइटमेंट इस बारे में होता है कि शेयर्स खरीद तो लिए, अब वो शेयर्स बेच के जब पैसा जेब में आएगा तो जो सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है, वो जो खुशी हमको मिलती है, वो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। सो सेकेंडरी मार्केट क्रिएट्स प्लेटफॉर्म फॉर अस टू सेल ऑफ द सिक्योरिटीज विच वी हैव परचेज फ्रॉम प्राइमरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में खरीदने वाला कौन होगा? तो दूसरा इन्वेस्टर होगा। सो प्राइमरी मार्केट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर, सेकेंडरी मार्केट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर, जहां पे हम कंटिन्यूअसली शेयर्स और सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ
प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट फंक्शंस। और एक चीज जो आपके मन में कंफ्यूजन होगा, व्हाई शेयर्स, व्हाई ओनली शेयर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, उसका जवाब ये स्लाइड पे भी हम दे देते हैं, और आपका थोड़ा सा अभी कंट्रीब्यूशन मुझे वापस थोड़ा सा लगने वाला है। सो मान के चलते हैं एज एन एग्जांपल दैट आई हैव परचेज इक्विटी शेयर्स थ्रू आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो प्राइमरी मार्केट का हिस्सा है। नाम से ही पता चल रहा है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पे पब्लिक को पहली बार ये शेयर्स ऑफर किए गए हैं, तो वी कॉल इट एज पब्लिक इशू, जिसके द्वारा मैं आज इक्विटी शेयर होल्डर बन चुका हूं। नाउ व्हेनेवर कंपनीज वांट्स टू रेज कैपिटल अगेन इन द फ्यूचर, it is your right that you should be asked first before they are asked or before they are offered to outsiders. तो बाहर वालों को शेयर्स में इन्वेस्ट करने का मौका देने से पहले आपको मौका मिलना ही आपका राइट है। एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी है राइट्स इशू के साथ, that if others are given these shares for 100 rupees, you will get these shares for let's say 90 rupees for example. तो आपको कंसेशनल प्राइस पे ये राइट्स इशू के शेयर्स मिलते हैं। बोनस इशू तो आई एम श्योर हम सभी लोगों ने सुना हुआ है, ये फ्री शेयर्स होते हैं। कंपनी अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के तहत ये शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड करती है। तो अब जरा चैट बॉक्स में बताइए, शेयर्स के वजह से हमें फ्यूचर में राइट्स इशू कंसेशनल प्राइस में मिल रहे हैं, बोनस इशू फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, इसमें हमारा फायदा होगा या नुकसान? इज इट गेन फॉर अस और लॉस फॉर अस? एनीवन इन द चैट बॉक्स, गेन फॉर अस, लॉस फॉर अस? ये जो कंसेशनल प्राइस वाले शेयर्स हैं, फ्री में मिल रहे हुए शेयर्स हैं, इससे एज ए इन्वेस्टर इट्स बेनिफिट फॉर अस और इट्स अ लॉस फॉर अस? ओके, पीयूष सर कह रहे हैं इट्स बेनिफिट फॉर अस, डॉक्टर अर्चना जी कह रहे हैं इट्स गेन फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेस। नाउ व्हाई वी आर गेटिंग ऑल दीज गेन्स? Because I purchased these shares through public issue once upon a time. तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव को कंपेयर कर लीजिए, शेयर्स ही एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ हमें प्रेजेंट बेनिफिट देती है, दीपिका जी ने भी कहा इट्स अ बेनिफिट फॉर अस, तो ना सिर्फ वो हमें प्रेजेंट बेनिफिट देती है, इट ऑल्सो क्रिएट्स फ्यूचर बेनिफिट फॉर अस। दैट इज वन मोर रीजन व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड लुक एट शेयर्स एज one of the lucrative investment alternative. Now, जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली रूल्स और रेगुलेशंस की बात करना बहुत जरूरी है। सो द रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर योर मार्केट शुड बी रेगुलेटेड और नॉट। वैष्णवी जी कह रही है दैट शी इज नॉट एबल टू हियर यू। ऑल ऑफ यू कैन हियर मी, राइट? Am I audible properly? Yes, sir. Yes. Yes, sir, you are audible, sir. Continue. Okay. सो वैष्णवी जी और गोपाल सर भी शायद कह रहे हैं कि दे कांट हियर मी। आप जरा अपना वॉइस सेटिंग कर लीजिए, चेक कर लीजिए, सो दैट यू विल बी एबल टू हियर मी। थैंक यू। सो मार्केट्स रेगुलेट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, दैट इज नॉट द रियल क्वेश्चन। द रियल क्वेश्चन इज हु रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया? इज इट सेबी, एमपी, बीएससी, एनएससी? बहुत बार ये सब चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका रोल क्या है। The right answer we have is Securities and Exchange Board of India. And जब भी हम सेबी की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक रूल्स बनाने का काम सेबी करती है, बट अगर हम रियल सेंस में देखा जाए तो दे प्ले अ रोल ऑफ अ त्रिमूर्ति फॉर अस। 3 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो हमारे लिए कैरी आउट करते हैं। आप जैसे मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने खून पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई, hard earned money they are putting it in the market. So protecting the interest of investors and create safe investment environment is always the priority for Securities and Exchange Board of India. तो अगर हम कोई भी पॉलिसी डिसीजंस को देखते हैं, आगे भी हम कुछ उनके मेजरमेंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, दैट इज व्हाट दे आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन। दूसरी चीज, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं तो ग्लोबल मार्केट्स में बहुत सारे नए नए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आते रहते हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट के ऑल्टरनेटिव्स आते रहते हैं। तो ये नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करना, सो दैट एज इन्वेस्टर्स वी विल हैव मोर वैरायटी फॉर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल दैट दे प्ले। सो डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इज व्हाट दे ऑलवेज टॉक अबाउट। और तीसरी चीज है, आखिरी में ये बात करेंगे रूल्स और रेगुलेशंस।
सो वी आर नॉट सेइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना ये इनका लेस इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बट दे ऑल्सो प्ले रोल ऑफ प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड देन रेगुलेशन। कहीं ना कहीं पे मार्केट की एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखना और इंप्रूव करना, इसके ऊपर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का पूरा फोकस होता है। अब हमारे जो फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी है, वो जर्नी की शुरुआत अगर हमें करनी है, सो हाउ डू वी स्टार्ट ऑफ, व्हाट आर द मेथड्स वी कैन यूज, व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू टेक, इसके बारे में अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और डेफिनेटली आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं, जो कॉमन गलतियां हम करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एंटायर प्रेजेंटेशन। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट के जर्नी की शुरुआत करनी है सिक्योरिटीज मार्केट से, तो वी विल रिक्वायर अ त्रिमूर्ति अगेन। स्लाइड पे तो हमें दो चीजें दिख रही है, बट द बेसिक रिक्वायरमेंट इज टू हैव अ बैंक अकाउंट। आई एम श्योर जो सभी पार्टिसिपेंट्स आज ये अटेंड कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू ऑलरेडी हैव अ बैंक अकाउंट। So when you open a bank account with the identity proof and proof of address, your documents will be checked and verified, and they will carry out your favorite exercise called KYC, know your customer. So once your documents and everything is checked, then we can go ahead and open up something called DMAT account and something called trading account for that matter. शायद कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। So we talk about DMAT account, which is like a ledger account for us. जो ledger account कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे या फैकल्टीज होंगे वो समझेंगे, बट ledger account in simple words is where the record of purchased and sold securities is kept, और हमारे पास आज के तारीख में कितना बैलेंस है उसकी भी जानकारी हमें डीमैट अकाउंट से मिलती है। एंड द थर्ड अकाउंट विच इज रिक्वायर्ड इन अ 3-in-1 combo is our trading account. So trading account is a platform that connects us as an investor to the market. तो मार्केट और इन्वेस्टर के बीच का प्लेटफॉर्म है जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज को इजी बनाता है, दैट इज टर्म्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर दैट मैटर। सो वी हैव अ त्रिमूर्ति हियर, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, एंड फाइनली व्हाट वी हैव इज ट्रेडिंग अकाउंट। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ, जो सवाल शायद आपके माइंड में बहुत टाइम से चल रहा होगा, that how do we ultimately identify good companies, good industries to buy. I am asking you a question, फिर से आपको एक बार चैट बॉक्स में जवाब देने का आपकी थोड़ी बारी आ गई, आप अनम्यूट करके भी ऑफ कोर्स आंसर दे सकते हैं। You have two options to invest in. Company X is manufacturing typewriters. Company Y is manufacturing laptops. Which company would you prefer to invest? लैपटॉप वाला कंपनी या टाइपराइटर वाला कंपनी? सर लैपटॉप वाला। Of course, 2-3 जवाब आ चुके हैं। लैपटॉप वाला कंपनी। Can I ask you why do you think लैपटॉप वाला कंपनी is good? Sanjana ji is also saying, Piyush sir is saying in the chat box. उसमें डेटा सेव रहता है। Okay, डेटा सेव रहता है लैपटॉप में, वो एक एडवांटेज है। Anything else? Why do you think laptop should be preferred? Going with the market trends, it's profitable for us. Absolutely right. अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं, अगर हम मार्केट ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं, तो फ्यूचर में डिमांड ज्यादा किसको होने वाला है कंपैरिजन में? ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी विद लैपटॉप। सो दैट इज अ रीजन। गोपाल सर कह रहे हैं काळाची गरज है। एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ बूम नाउअडेज। इज पीयूष सर इज सेइंग थैंक यू सो मच फॉर योर रिएक्शंस, बट होल्ड ऑन योर एक्साइटमेंट। आप थोड़ा सा जो अपना एक्साइटमेंट है सही आंसर वाला, थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। Did I tell you about X Limited and Y Limited का प्रॉफिटेबिलिटी? दोन्ही माहिती प्रॉफिटेबल कंपनी कुठली आम्ही सांगितलं का? नाही. Did I tell you about balance sheet and assets and liabilities? No. So without knowing lot of things about balance sheets, assets and liabilities and profitabilities and previous records, with the simple logic, we can easily understand that what is good for us to make investment. तो देखो आपका जवाब जो था वो आपने खुद ही दिया है। आपके माइंड में जो सवाल था कि राइट कंपनी कैसे सिलेक्ट किया जाए, आप ही ने उसका जवाब दिया है। द कंपनीज विच आर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच हैव फ्यूचर डिमांड आर ऑलवेज गोइंग टू बी सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ऑफ कोर्स ये जो स्ट्रेटेजी हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं, दैट विल बी हेल्पफुल इफ वी वांट टू इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म। 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, 8 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, 1-1.5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो ये स्ट्रेटेजी डेफिनेटली कारगर साबित होगी।
आप सभी लोगों ने चैट बॉक्स में पहले भी जवाब दिया था कुछ एक मेरे क्वेश्चन का कि कौन से प्रोडक्ट्स आप जानते हैं कि हमने यूज किए हैं और फ्यूचर में भी शायद कुछ मंथ हमको ये यूज करने पड़ेंगे, वेदर वी वांट इट और वी डोंट वांट इट. सो वी ऑल नो दैट ऑल प्रोडक्ट्स जो हम यूज करने वाले हैं उसकी कंपनियां डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होने वाली है. जहां तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सवाल है तो हमें कहीं ना कहीं पे वो चार्ट्स देखने पड़ेंगे, हमें प्रीवियस रिकॉर्ड्स कंपनी के देखने पड़ेंगे, मैनेजमेंट कौन सा है कंपनी का, कितना हेल्पफुल है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा. सो वी हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस अगर हम 5 साल 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं. सो द टिप दैट आई वांट टू शेयर इज द स्ट्रैटेजी फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, strategy for long term investment is going to be different. But irrespective of whether there is short term investment we are looking at or long term investment that we are looking at, there is definitely going to be a risk factor involved. So risk is always going to be there in any kind of investment. There are only two things which are certain in life, or there is rather only one thing which is certain in life, that is death. For everything else there is risk involved. तो कुछ लोगों का एटीट्यूड ये होता है और जो कॉमन मिस्टेक हम कर देते हैं उसकी तरफ मैं अभी धीरे धीरे आ रहा हूं, दैट रिस्क है ना, मतलब मैं कुछ भी करूं रिस्क होने ही वाला है ना, तो लेट मी जस्ट जंप ऑफ टू इन्वेस्टमेंट एंड सी व्हाट हैपेंस. कि बिना सोचे समझे हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे क्योंकि वैसे भी अगर मैंने सोच समझ के भी किया तो रिस्क तो होने ही वाला है. बट दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड. द राइट एटीट्यूड इज because risk is going to be there, we have to try to analyze situations and minimize that risk wherever it is possible. तो रिस्क है इसीलिए बिना सोचे समझे अगर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल. वी ऑलवेज से वेल बिगन इज हाफ डन. अगर शुरुआत सही होती है तो पूरा काम भी सही हो जाता है, लेकिन शुरुआत ही अगर हम गलत करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल फॉर अस इन द फ्यूचर. तो मैं स्टूडेंट्स भी थोड़े से अटेंड कर रहे हैं, उनको जो कोरिलेट हो सकता है ऐसा एग्जांपल देता हूं. बंजी जंपिंग का नाम आपने सुना होगा, बहुत एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है. जब माउंटेन के टॉप पे जाते हैं और लोग वहां से एक जंप कर देते हैं और फील लेते हैं कि अगर हम हवा में तैर रहे हैं तो कैसा एक्सपीरियंस आएगा. नाउ दैट बंजी जंपिंग, स्टूडेंट्स हैं तो इंडिकेट कर सकते हैं चैट बॉक्स में, विल यू टेक अ बंजी जंप विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट्स और विद सेफ्टी इक्विपमेंट्स? ये बंजी जंपिंग में सेफ्टी इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी कि नहीं होगी, कि ऐसे ही जंप कर देंगे? अगर ऐसे ही हम जंप करेंगे तो डेफिनेटली वो लाइफ का शायद लास्ट जंप भी हो सकता है. सो द सेम लॉजिक विल अप्लाई टू योर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो. बिना सोचे समझे केयरलेस एटीट्यूड से अगर हम इन्वेस्टमेंट में जंप कर देते हैं, सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट ट्रबल फॉर अस. और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछने जा रहा हूं, that during this pandemic or generally also, supposingly if you are not keeping well, अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी बुखार है, fever we have, then what do we do? Do we sit at home or we go to a doctor? Yes, anyone in the chat box? What do we do? हम घर पे बैठे रहेंगे कि डॉक्टर के पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे. ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाएंगे. घर पे रहने से तो तबीयत ठीक होने वाली नहीं है, और बिगड़ सकती है, और परेशानियां हो सकती है. अगर हमें कोई लीगल ट्रबल है, कुछ हम लीगल हेल्प चाहिए, तो हम लॉयर के पास जाएंगे या घर पे बैठे रहेंगे? लॉयर. डेफिनेटली वी विल गो टू लॉयर. नमिता मैडम इज सेइंग थैंक यू. सो अगर हमें हेल्थ के लिए प्रोफेशनल की जरूरत लगती है तो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ के लिए प्रोफेशनल के पास जाने से हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए. वी शुड नॉट हेजिटेट to seek help from professionals. Many times we have this wrong impression in our mind that ये जो एजेंट्स होते हैं या एडवाइजर्स होते हैं वो सिर्फ अपने उनके खुद के भले के बारे में सोचेंगे, हमें तो सही एडवाइस नहीं देंगे. बट इट डजंट वर्क लाइक दैट. दीज पीपल आर प्रोफेशनल एंड दे आर देयर टू हेल्प यू. तो जब जब हमें जरूरत लगेगी, जब जब हमें ऐसा लगेगा कि हमें हेल्प की जरूरत है, वी शुड नॉट हेजिटेट टू टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल पीपल ऑल्सो. अब जहां तक एप्लीकेशन करने का सवाल है, वी हैव टू ऑप्शंस अवेलेबल विथ अस. वी कैन गो फॉर ऑनलाइन मोड और वी कैन गो फॉर ऑफलाइन मोड. अब इसमें कुछ सही है या गलत है, या कुछ ज्यादा अच्छा है या ज्यादा बुरा है, दैट इज नथिंग, नो कंपैरिजन बिटवीन देम. इट इज अवर पर्सनल चॉइस whether we want to go ahead with online mode or we want to go for offline mode.
So whatever you feel comfortable, जो हमें सही लगता है उसके हिसाब से we can decide what is a good option for us. There is nothing right in going online mode, or there is nothing like it's wrong to go for offline mode. Both are ultimately going to function in a similar manner. Depending on our choice, we can make a decision on that. अब जब हम शेयर होल्डर्स बन जाते हैं तो हमें कुछ राइट्स भी मिलते हैं. So we have a right to receive dividend. We have a right to receive annual reports. कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, ऑडिटर्स अपॉइंट करने हैं. सो वी हैव राइट टू डू दैट. कंपनी जो भी मीटिंग्स बुलाती है वो मीटिंग्स अटेंड करने का राइट भी हमारे पास होता है. बट मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज बिकॉज वी आर स्मॉल इन्वेस्टर्स, वी डोंट हैव ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टेड इन वन कंपनी, and we are also busy in our own day-to-day routine life, we tend to ignore these rights. तो I thought कि ये rights हमारे पास है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है. Now whether we execute these rights or no, whether we attend meetings or no, that is our personal choice. But rights do exist is something that I thought I will bring it to your notice over here. Now SEBI ने कुछ recent measurements हमारे protection के लिए किए हुए हैं. अगेन अब सभी इनिशिएटिव्स के बारे में अगर हम देखते हैं, सो द ओनली कॉमन पॉइंट यू विल फाइंड इज ऑल ऑफ देम एम एट प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर. आप ई-केवाईसी की बात कर लीजिए, आप बेसिक सर्विसेज डीमैट की बात कर लीजिए, म्यूचुअल फंड को रिस्क के हिसाब से लेबलिंग करने की बात कर लीजिए, या पावर ऑफ अटर्नी के नॉर्म्स को रिलैक्स करने की बात कर लीजिए. एवरीवेयर यू विल फाइंड दैट हाउ कन्वीनियंट एंड हाउ ट्रांसपेरेंट सिस्टम कैन बी क्रिएटेड is the mantra that they are following in introducing all these measurements which we have. Now let's talk about some of the do's and don'ts and the common mistakes जो हम हमारे investment planning में करते हैं. तीन ऐसे फीलिंग्स हैं, तीन ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग को कंट्रोल करती है. अगर हम इनको कंट्रोल करेंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग सक्सेस डेफिनेटली होगा. फर्स्ट वन इज अ ग्रीड. जब मार्केट बुलिश होते हैं, जब मार्केट राइजिंग होते हैं, तब ये ग्रीड जो होती है वो हमारे मन का कंट्रोल ले लेते हैं. मनाचा ताबा आपल्याला हाव आपल्या मनाचा ताबा घेते. सो वी फील दैट मार्केट्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड वी वेट, एंड मार्केट सडनली टेक्स यू टर्न एंड वी लूज अपॉर्चुनिटीज टू लिक्विडेट अवर इन्वेस्टमेंट्स. तो ग्रीड के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. दूसरा चीज इज फियर. जो डर हमारे माइंड में होता है, वो डर कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट्स को कंट्रोल करता है. नाउ लेट मी आस्क अ सिंपल क्वेश्चन टू यू एंड यू कैन इंडिकेट इन द चैट बॉक्स. आप सभी लोगों ने मान के चलेंगे कि एक शेयर 100 रुपीज में परचेस किया है, एंड टुडेज प्राइस ऑफ दैट शेयर इज 95 रुपीज. इज इट गेन फॉर यू और लॉस फॉर यू? प्लीज इंडिकेट इन द चैट बॉक्स. Loss. Okay. We are getting one answer as loss. Anyone else? Gain for you or loss for you? गोपाल सर कह रहे हैं, गोपाल जी कह रहे हैं लॉस, संजना मैडम, मिलिंद सर कह रहे हैं लॉस 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 एक्सेट्रा. दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली मीन बाय फियर फैक्टर. थैंक यू. मोर आंसर्स आर कमिंग अप, बट टाइम के प्रोक्सिमिटी को देखते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. दिस इज टिपिकली व्हाट आई मीन बाय फियर फैक्टर. आज के तारीख में शेयर का प्राइस 95 हुआ है, डज नॉट मीन इट्स अ लॉस फॉर यू. अगर आप उसे 95 में बेचते हो तो वो आपका नुकसान हुआ ना. I have purchased that for 100. If I sell it for 95, then only it is loss for me. If I wait, that 95 can always bounce back to 100, 105, 110, and then if I sell it off, I can always make profit out of it. So simply because market नीचे जा रहा है तो हम डर के हमारे शेयर्स बेचेंगे, सिक्योरिटीज को सेल करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा नुकसान हो सकता है. बट इफ द रियल क्वेश्चन इज इट नीडेड? क्या जरूरत है हमको वो शेयर बेचने की, या जरूरत है हमको वो सिक्योरिटी बेचने की? अगर जरूरत नहीं है, अगर हम उसको नहीं बेचेंगे तो डेफिनेटली ये नुकसान जो आपको नुकसान लग रहा था उससे हम बच सकते हैं. सो मार्केट में प्लस एंड माइनस, अप एंड डाउन मूवमेंट्स तो होते ही रहेंगे, होते रहे हैं, होते रहेंगे. वी डोंट हैव टू रिस्पॉन्ड टू एवरी फ्लक्चुएशन इन द मार्केट विथ आवर स्ट्रेटेजीज. तो हमें कहीं ना कहीं पे अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है. मार्केट नीचे चला गया तो बेच देंगे, ये सही रणनीति नहीं होगी, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी रिजल्टिंग इनटू अ लॉस फैक्टर. द थर्ड थिंग, द मिस्टेक दैट वी एंड अप डूइंग इज वी ट्राई टू
कॉपी समवन, वी ट्राय टू इमिटेट. आपल्याला कोणतरी एक आदर्श असतो, आदर्श व्यक्ती आपल्या डोळ्यासमोर असते. सो व्हाट वी टेंड टू थिंक कि देखो मेरे फ्रेंड ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, उसने ऐसे ऐसे XYZ जगह पे इन्वेस्टमेंट की, देखो उसको फायदा हुआ, उसने नई गाड़ी ले ली, मैं भी यही करूंगा. या फिर हम देखते हैं कि कोई मेरी कजिन सिस्टर है, उसने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था, उसने ऐसा ऐसा इन्वेस्ट किया, मैं भी वही करूंगी और खुद के लिए नया घर खरीदूंगी. सो वी ऑल आर यूनिक in terms of our DNA, we all are unique in terms of our fingerprints. Similarly, हमारी जो फाइनेंशियल जरूरतें हैं, फाइनेंशियल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे हैं, वो दूसरे के साथ मेल नहीं खा सकते. तो मेरी फाइनेंशियल नीड और मेरे कजिन ब्रदर की स्ट्रैटेजी हम अगर मैच करने जाएंगे तो डेफिनेटली हम फेल होने वाले हैं. वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज माय स्ट्रैटेजी. हमारा फैमिली कॉम्पोजिशन अलग है, हमारा इनकम लेवल दूसरों से अलग है, हमारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफरेंट कंपेयर टू अदर्स. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिजाइन अवर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रैटेजी. एक और हमारा टिप आपको सबको दे देता हूं. एक सवाल मैं पूछूंगा, आपका उसका जवाब नहीं देना है इस बार फॉर अ चेंज. द क्वेश्चन आई हैव फॉर यू इज व्हाट इज योर एज. आप ये जवाब मत दीजिएगा, ये नंबर आपके माइंड में रख दीजिए. तो मैं मेरा एग्जांपल देता हूं. टुडे आई एम 37 इयर्स ओल्ड. तो जितना भी पैसा मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है, उसमें से 37% ऑफ माय इन्वेस्टमेंट गोज इन डेट. जो सेफ वाला इन्वेस्टमेंट है ना, डिबेंचर्स में लगा दिया, फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया, जो सिक्योरिटी के साथ कंफर्म मुझे इतना इंटरेस्ट देगा. एंड 100 माइनस माय एज. आप अपना अपना एज के हिसाब से नंबर निकाल लीजिए. मेरे एज के हिसाब से आएगा 63. सो 100 माइनस 37, 63% ऑफ माय इन्वेस्टमेंट गोज इन इक्विटीज. फिर वो इक्विटी शेयर्स में जा सकता है, म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम्स में जाता है, ELSS जैसे स्कीम्स में जाता है, जिसको हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स कहते हैं. सो ये एक इक्वेशन है जो हम सब माइंड में रख सकते हैं, ताकि हमें ये भी पता चल सकता है कि रिस्क एंड रिटर्न को बैलेंस कैसे किया जाए और बैलेंस पोर्टफोलियो हम कैसा क्रिएट कर सकते हैं. अनदर पॉइंट विच आई वांट टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस, आर्ग्यूबली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे डिस्कशन का, इज कैन एनी वन ऑफ यू इंडिकेट, एक रैंडम गेस आपकी तरफ से मैं चाहूंगा कि जब फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, तो कौन सा एक वर्ड होता है जो P से स्टार्ट होता है, P फॉर पैरेट, P से स्टार्ट होने वाला कौन सा वर्ड होता है जो हम हमेशा हमारे माइंड में रखते हैं जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे? एनीवन, एनी गेस, एनी रैंडम गेस, व्हाट यू थिंक, विच P इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर जर्नी ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? आप अनम्यूट करके भी कह सकते हैं. सॉरी, पॉजिटिव. प्रॉफिट. ओके, पॉजिटिविटी, वेरी गुड. एनीवन एल्स? प्रॉफिट. प्रॉफिट, ये सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड आंसर था, क्योंकि पैसे की बात चल रही है, इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, तो प्रॉफिट होना चाहिए. संजना इज ऑल्सो सेइंग प्रॉफिट हियर. संजना मैडम कह रहे हैं प्रॉफिट. प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन, मिलिंद सर कह रहे हैं सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट टुडे कुछ लोग सोच रहे होंगे पोर्टफोलियो, प्लानिंग, परफेक्शन, पेशेंस, ऐसे बहुत सारे वर्ड पी से स्टार्ट होते हैं जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े होते हैं. बट टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. व्हाट वी हैव टू लुक एट इज P फॉर पर्पस. अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पस ही नहीं रखेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट बेकार है. सो आई हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड ट्रिप फंड फॉर माई सेल्फ. आपने नाम सुना नहीं होगा, क्योंकि ट्रिप फंड ऐसा कोई फंड होता नहीं है मार्केट में. इसका नामकरण त्याचं बारसं मी केलेलं आहे ट्रिप फंड म्हणून. सो व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ ट्रिप फंड, बिकॉज द मनी आई इन्वेस्ट इज यूज्ड ओनली फॉर टेकिंग ट्रिप्स. सो जब भी मुझे 1 महीने के बाद मान के चलते हैं कि अगर घूमने के लिए जाना है, ट्रिप के लिए जाना है, तो 1 महीने में जब भी मार्केट हाई पोजीशन पे होगा, आई इमीडिएटली सेल सम ऑफ माय इन्वेस्टमेंट, लिक्विडेट दैट, और वो पैसा जमा करके मैं अपनी ट्रिप सक्सेसफुली कंडक्ट करता हूं. ये ट्रिप खत्म हो गई, मैं वापस आ गया, आई अगेन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट, तो मेरे नेक्स्ट ट्रिप का प्रिपरेशन शुरू हो जाता है. सो सिमिलरली यू कैन अटैच सम पर्पस फॉर योर इन्वेस्टमेंट, and that purpose will tell you what is the right time to come out of your investment. Because बहुत बार हम कौन से दुविधा में फंस जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, there will be many people who will tell you how to invest, but no one will tell you when to come out of the market. तो अगर हम ऑब्जेक्टिव और पर्पस को अटैच करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन कम बैक फ्रॉम द मार्केट, वी कैन टेक एग्जिट फ्रॉम द मार्केट एट रिलेटिवली एंड फेयरली राइट टाइम.
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, आई थॉट आई विल शेयर विथ यू एज सम ऑफ माय टिप्स एंड एडवाइसेस। तो लेट्स गो वन स्टेप फर्दर और पूरा 360 डिग्री का सर्कल जो है वो सर्कल कंप्लीट करते हैं। तो कई बार हमें ऐसा डर भी होता है माइंड में कि अगर मेरे साथ कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो गई या कुछ मिस्टेक हो गया मेरे साथ शेयर्स मिलने में, तो वेयर डू आई गो? सो सेबी हैज क्रिएटेड अ कंप्लीट रिड्रेसल सिस्टम फॉर अस, दैट इज कॉल्ड स्कोर, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। वी हैव अ मोबाइल ऐप आल्सो फॉर स्कोर सिस्टम। तो मोबाइल से भी हम लोग कंप्लेंट्स दर्ज करा सकते हैं, ये वेबसाइट पे भी हम लोग कंप्लेंट्स दर्ज करा सकते हैं। We can complain online, we can track our complaints online, and we get the solution of our complaints also online. Apart from that, if we need any other help, we can approach website again, then we can email them, we can call them on a toll free number. So SEBI ने पूरी तरीके से मैकेनिज्म बना के रखा हुआ है कि आपको कंप्लेंट करनी है उसके लिए अलग प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए भी there is a separate process and mechanism is what they have developed for us. But the mistake we tend to do is हम ईमेल इंफॉर्मेशन वाले ईमेल में डालते हैं कि हमारी कंप्लेंट है, और कंप्लेंट वाले ईमेल वेबसाइट पे जाके वहां पे हम लोग कहते हैं कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर दोनों जगह से जवाब नहीं आता है, एंड देन वी फील दैट अल्टीमेटली हमें कुछ जवाब नहीं मिला। तो इंफॉर्मेशन के लिए जो डिटेल्स हैं उस पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, और ग्रीवियंसेस के लिए जो पिछले स्लाइड में हम लोग बात कर रहे थे, दैट विल बी यूजफुल फॉर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स और इश्यूज और कंप्लेंट्स फॉर दैट मैटर। सो हमारे प्रेजेंटेशन का बड़ा हिस्सा हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई एम गोइंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, एंड इन नेक्स्ट 5 to 7 minutes we will complete the entire presentation, and then I will keep it open for your thoughts, comments or suggestions about my session. जैसे आप कुछ लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट लेके जा रहे हो, मैं भी आपसे सजेशंस या आपके फीडबैक डेफिनेटली लेके जाऊंगा। सो द सेकेंड एस्पेक्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज स्टॉक एक्सचेंज। जब हमें स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा इसको थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, दैट वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। ऑनलाइन ऑप्शन इज देयर, ऑफलाइन ऑप्शन इज देयर, ब्रोकर के पास जाके फिलअप फॉर्म फिजिकली फिल कर सकते हैं, टेलीफोनिक ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, ईमेल्स पे हम लोग ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस आजकल बहुत सारे हैं उसके ऊपर ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। सो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। एज सुन एज यू प्लेस द ऑर्डर एंड वंस इट इज कंफर्म्ड, we get something called contract note. So contract note is a document which is a written proof of our transactions. तो जब भी तक हमारे पास वो सिक्योरिटीज है, जब तक हम उसे नहीं बेचते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट कहीं ना कहीं हमारे पास रहना होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज द ओनली प्रूफ दैट वी कैन यूज फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन। मुद्दा हमारे लिए ये समझना जरूरी है ये स्लाइड से, दैट दिस कम्स ऑन आवर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो कई बार क्या होता है ना कि हमें डर लगता है कि मैं ईमेल आईडी दे दूंगा, मेरा फोन नंबर दे दूंगा, तो ये लोग मुझे फोन करके परेशान करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर बहुत सही होना जरूरी है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कम्युनिकेशन नाउअडेज दैट हैपेंस ऑन एसएमएस एंड मोबाइल्स। इसीलिए कहीं ना कहीं पे हमें ईमेल्स और मोबाइल नंबर सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। अगर हम गलत जानकारी देते हैं तो यू नेवर नो हाउ योर information which is reaching to someone else will be used or rather it will be misused. तो हम ही हमारे पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर रहे हैं अगर हम गलत डेटा, गलत इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट करते वक्त प्रोवाइड करते हैं। तो कई बार जब हम ब्रोकर्स के साथ डील करते हैं तो मार्जिन का सवाल पैदा होता है, कमीशन उनको पे करने का, ब्रोकरेज पे करने का सवाल पैदा होता है। सो ऑल दिस ब्रोकर्स, व्हाट कमीशंस दे चार्ज and what range of commission they should charge is also designed and structured. So there are rules and regulations related to that. तो हमें कौन सी सावधानी बरतनी है यहाँ पे, that we should not deal with brokers in cash. कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर ब्रोकर के साथ करते हैं तो that can lead to a risky affair. But if we are dealing in check, that too in cross check, issued in the name of a stock broking firm, ब्रोकर के नाम का भी चेक नहीं देंगे, ब्रोकिंग फर्म के नाम का क्रॉस चेक देंगे, तो ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यू बीइंग ओवरचार्ज और यू बीइंग अंडरचार्ज फॉर दैट मैटर। तो कोई कंप्लेन करने का सवाल नहीं आता है। फिर भी अगर हमें स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट्स करनी है तो देयर इज अ सेपरेट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल। तो पिछले वाला जो ग्रीवियंस रिड्रेसल था वो सेबी का था, दिस वन इज ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज,
सो वी कैन गो ऑन ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, ईमेल के द्वारा कंप्लेंट्स कर सकते हैं, फिजिकल लेटर्स भी हम लोग सबमिट कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑलवेज गो टू नियरेस्ट इन्वेस्टर सर्विस सेंटर, जहां पे भी हम अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं. So there is a grievance redressal separately available for complaints against brokers also. And not to forget, and don't get confused, और एक grievance redressal भी आने वाला है पिछले 2-3 स्लाइड के आगे, वो होगा depositories के बारे में. So the third aspect that we are going to touch upon in next 2-3 minutes is about role of depositories for that matter. तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 2 लीडिंग डिपॉजिटरीज हैं, and these are central depository and national depository. One deals with Bombay Stock Exchange, the other one deals with National Stock Exchange for that matter. तो ये depositories हमारे लिए क्या काम करते हैं, कौन सा रोल हमारे लिए अदा करते हैं? They help us in demat, dematerialization. So if you have Purana physical certificates lying with you, if you want to convert them into electronic form for easy trading, now that function will be done by depositories. किसी को रिवर्स प्रोसेस करना है, we call it as rematerialization, that also is possible. अगर हमें हमारे सिक्योरिटीज दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करने हैं तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरीज. अगर हमें नॉमिनीज का चेंज करना है, बेनिफिशियल ओनरशिप चेंज करनी है, दैट वे ऑल्सो कैन बी डन थ्रू डिपॉजिटरीज. बट ये जो डिपॉजिटरीज होते हैं उनको हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते. वी हैव टू अवेल दिस सर्विसेज थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स. तो ये जो स्टॉक ब्रोकर्स की चर्चा हम कर रहे थे, या अलग अलग कमर्शियल बैंक्स होते हैं जहां पे हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, these become depository participants and it's 100% safe and secure for us to invest in any of these, invest with any of these depository participants. Now there is another process called transmission. अगर unfortunately लेकिन certainly कभी ना कभी ये होगा कि हमारी डेथ हो गई या फिर अगर हम bankrupt हो गए, I wish किसी के पास ये मौका नहीं आए, बट अगर ऐसा होता है तो हमारी सिक्योरिटीज जो है वो दूसरे के नाम पे ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो कैरिड आउट बाय डिपॉजिटरीज फॉर दैट मैटर. सो अनदर एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज इज वी कैन कीप इट एज अ कोलैटरल. अगर हमें लोन लेना है तो उसके अगेंस्ट तारण म्हणून किंवा सिक्योरिटी की तरह भी हम लोग इस चीज को रख सकते हैं. एंड सितंबर 2020, ऑलमोस्ट 1 साल पहले इसके बारे में नई रूल्स आए हुए हैं मार्जिन के बारे में. तो वो रूल्स और रेगुलेशंस को भी हमको मद्देनजर रखते हुए ये सिक्योरिटीज और शेयर्स का इन्वेस्टमेंट इस तरीके से भी हमें देखना चाहिए दैट दे आर नॉट ओनली गिविंग मी प्रॉफिटेबिलिटी, दे आर ऑल्सो गिविंग मी पोटेंशियल पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग लोन इफ एट ऑल नीड अराइजेस इन द फ्यूचर फॉर दैट मैटर. अब हम लास्ट 1-2 मिनट में 2 नए चीजों की बात करेंगे. We'll talk about basic services डीमैट अकाउंट. जब हम इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 50,000 या 1 लाख से नीचे होता है फॉर इक्विटीज एंड डेट रिस्पेक्टिवली, तो हमें कोई भी डीमैट के अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस पे नहीं करने होंगे. एक बार 50,000 क्रॉस कर लिया अप टू 2 लाख और 1 लाख क्रॉस कर लिया अप टू 2 लाख फॉर इक्विटी एंड डेट, तो हम पूरे साल के लिए नॉमिनल 100 रुपीज का चार्ज पे करेंगे. ऑफकोर्स वंस वी एक्सीड 2 lakhs then we don't remain small investor, तो regular charges will be applicable for us. बट जब हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो हमारा प्रॉफिट बहुत कम होता है, खर्चा ज्यादा होता है, तो ये सब चीज का बेनिफिट लेना जरूरी है. दिस इज अ स्पेशल फैसिलिटी क्रिएटेड फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स. द कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये हमारे पूरे इन्वेस्टमेंट की कुंडली है. इक्विटी, डेट और म्यूचुअल फंड्स का पूरा रिकॉर्ड विल बी देयर इन कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग स्टेटमेंट. दिस इज ऑल्सो सेंड टू यू ऑन मंथली बेसिस. तो हम देख सकते हैं कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं. वी कैन ऑलवेज क्रॉस चेक वेदर वी आर गोइंग ऑन द राइट पाथ और नो. ये तीसरा ग्रीवियंस रिड्रेसल जिसका मेंशन मैंने पहले करके रखा था. सो वी हैव ऑनलाइन पोर्टल, वी कैन अप्रोच देम थ्रू ईमेल्स एंड देयर आर टोल फ्री नंबर्स आल्सो अवेलेबल सेपरेटली टू बी यूज्ड फॉर CDSL एंड नेशनल डिपॉजिटरीज फॉर दैट मैटर. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट कंपोनेंट, but definitely not the least, but the very important one is about BSE Star Mark Mutual Fund. This has created a complete digital impact in the ecosystem of mutual funds. तो आज अगर हम कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ है ये सेक्टर में, तो उसका बहुत सारा क्रेडिट इनिशिएटिव्स जो है BSE स्टार मार्क म्यूचुअल फंड जैसे ऐसे इनिशिएटिव्स को जाना चाहिए. तो ट्रेडिशनल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंप्लीटली रिप्लेस करते हुए
BSE स्टार मार्क म्यूचुअल फंड इज नाउ एंड टू एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन। आपका केवाईसी ऑनलाइन होगा, आपके ट्रांजैक्शंस विल बी ऑनलाइन, द पेमेंट्स एंड रिफंड्स विल हैपन ऑनलाइन, and your complaints and grievances also will be resolved online for that matter. So we call it as E2E online process, जिसकी वजह से आपका बहुमूल्य समय, you save lot of your time, lot of your energy. It gives you convenience also. You can relax, sit at home and start making investments. But more importantly, it also gives you more flexibility in terms of investment. तो आप technically electronic format होने की वजह से we can digital format होने की वजह से we can technically look at 24/7 availability of these options as far as investment is concerned. So BSE Star Mark Mutual Funds जैसे initiatives जो नए launch हुए हैं, they have created history and it's going to be historic movement and landmark development in the entire ecosystem of mutual funds for that matter. So in the proximity of time, this is what I thought I will share with you. So you should be aware of what recent developments are taking place. कौन-कौन सी नई-नई चीजें हो रही हैं, नए इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स क्या है और उसके बारे में सोचना क्यों जरूरी है और ये मैसेज हमें आगे पास ऑन भी करना क्यों जरूरी है, is what I thought I should keep as objective for this particular session. I once again thank and offer my sincere gratitude to the management of the Khandelwal College, the principal, faculty coordinator, and last but surely not the least, all the participants who have been very active in this entire session in terms of their responses. So thank you so much for having me here. I will stop my presentation here and I will keep it open for any thoughts, comments you have from your side. So you can put it in the chat box या unmute करके भी आप कह सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा, आपके कुछ comments हैं, suggestions हैं, I will be more than happy to take them. Thank you so much once again for having me here. Participants are requested, if any questions are there, please you can type in chat box or unmute yourself and speak with a great personality. We have Atul sir. Sir Gopal Ambuskar ji asked about the global market. शायद वो कहना चाह रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट का इंफॉर्मेशन हमें मिला। Okay. वैष्णवी जी, आरती जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स। Best type for share market. पीयूष सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसकी तरफ मैं आता हूँ। दिस प्रोग्राम इज फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, सो आई विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू टेक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ऐप और एनीथिंग। अगर आपने पूरा सेशन में भी देखा होगा तो मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया है या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया, हम एबीसी और XYZ की बात कर रहे थे। सो आई रिग्रेट कि ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा बिकॉज दैट विल बी अगेंस्ट माय प्रोटोकॉल टू टेक पर्टिकुलर नेम। लेकिन दो चीज जरूर मैं इसके साथ जोड़ के यहाँ पे कहना चाहूंगा that all these and this is my personal opinion, so I am not representing anyone. मैं खुद का ओपिनियन क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ कि that when we talk about these mobile applications and all, how far they are updated in terms of the information and suggestions which they offer, I have my own question mark on that. और दूसरी चीज जो मैंने अपने टॉक के दौरान भी कही थी कि ये जो एप्लीकेशंस होते हैं बहुत सारे टिप्स हमें देते रहते हैं, बहुत सारे सजेशंस हमें देते रहते हैं, बट दिस टिप्स एंड सजेशंस आर जेनेरिक, मतलब वो सबके लिए कॉमन होते हैं। वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है, ये हमें हमारे जरूरत के हिसाब से क्रॉस चेक करके फिर हमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। शिवाजी सर ने कहा है कि नवीन गुंतवणूकदाराने कशामध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे। सो अगर हम नए इन्वेस्टर्स हैं, मैं जानबूझ के हिंदी में बोल रहा हूं ताकि सभी लोग यहाँ पर समझ पाए, तो नए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है तो दे शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसकी दो तीन वजह भी मैं आपको बताता हूं व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज दिस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यू कैन स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल अमाउंट। मतलब ELSS जैसी स्कीम होती है जो हम 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं, SIP की बात कर रहा हूं मैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर रहा हूं, जो हम 1000 रुपीज से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। सो स्मॉल अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है, ओके वो ट्रेडिंग के बारे में पूछ रहे हैं तो उनके स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ भी आता हूं, लेकिन जो मैं बात कर रहा था उसको पूरी कर लेते हैं।
दूसरा एडवांटेज म्यूचुअल फंड के बारे में ये है कि वो डेफिनेटली रेगुलरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की हैबिट हमको लगा देते हैं कि हमें क्या कहते हैं कि वी कैन पॉसिबली हैव 5,000 kept aside फॉर इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे एसआईपी में, फिर बचे हुए पैसे में से खर्चा करेंगे। ये जो आदत लगनी चाहिए हमें, वो आदत लगाने का काम एसआईपी हमारे लिए करता है। तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट की आदत अपने आप डेवलप हो जाती है। और तीसरा पॉइंट जो है, जिनको डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के जितना नॉलेज या शायद कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, उनके लिए भी ये म्यूचुअल फंड का एसआईपी कैन बी अ गुड ऑप्शन। जहां तक सवाल जो था ट्रेडिंग के बारे में, शुरुआत करने के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था, दैट ट्रेडिंग के बारे में जो इन्वेस्टमेंट करने की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां से अगर किसी को शुरुआत करनी है तो दे शुड ऑलवेज अडॉप्ट अ 50-30-20 स्ट्रेटेजी। ये एक मैं आपको टिप देके जा रहा हूं या एक इक्वेशन आपको देके जा रहा हूं। 50% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन्वेस्टेड इन स्मॉल फंड, स्मॉल कैप जिसको हम कहते हैं, जिसका शेयर प्राइस कम होता है, क्योंकि कम शेयर प्राइस वाले शेयर्स जो होते हैं उसमें वोलेटिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का पॉसिबिलिटी इज मोर। 30% वी शुड इन्वेस्ट इन मिड कैप एंड 20% इन्वेस्टमेंट शुड गो इन लार्ज कैप, जिनके शेयर के प्राइजेस ही 2,000, 5,000, 10,000 एक शेयर का प्राइस होता है। तो इतने शेयर हम कितने खरीद पाएंगे, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। इसलिए 20% इन्वेस्टमेंट, वो एक मैंने ऐसी शुरुआत की थी, एक एक शेयर, बड़े बड़े अमाउंट का एक एक शेयर, दो शेयर, जैसा भी आपका बजट है लेते रहिए, वो बढ़ते रहेगा। लेकिन रियल रोलिंग जो आपका होने वाला है, जिसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, वो स्मॉल प्राइस के स्मॉल कैप के शेयर हम परचेस कर सकते हैं। दैट्स हाउ वी कैन स्टार्ट ऑफ विद 50-30-20 का इक्वेशन इन अवर माइंड। गोपाल सर ने पूछा है कि ट्रेनिंग कैसे मिल सकता है या कौन से कोर्सेस हमें करने चाहिए। अगेन एज आई सेड, किसी कोर्स का नाम लेना तो डेफिनेटली मेरे प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होगा, बट डेफिनेटली बीएससी और एनएससी के वेबसाइट्स पे अगर हम जाते हैं तो उनकी एजुकेशन विंग होती है, वो बहुत सारे अलग अलग सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स चलाते हैं। वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हम डेफिनेटली लर्न करने के लिए यूज कर सकते हैं। दे विल बी वेरी हेल्पफुल। वहां से आरती जी का सवाल था ट्रेनिंग के बारे में, तो वो ट्रेनिंग का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो कहीं ना कहीं पे आपको वहीं से मिलेगा। और ट्रेनिंग जो होता है ना सिक्योरिटीज मार्केट और इन्वेस्टमेंट का, देयर इज ऑलवेज द एक्सपीरियंस इज व्हाट इज गोइंग टू टीच यू। ऐसा कोई स्पेसिफिक सक्सेस मंत्रा तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कोई सक्सेस मंत्रा होता, ये करेंगे तो कंफर्म हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो ना आप ये सेशन अटेंड करते, आप सभी लोग वो मंत्रा का इस्तेमाल करके अपने लिए प्रॉफिट कमाते। सो ट्रेनिंग इज लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग जैसे होता है ना, कि आप सीखते जाते हो, वही आपका रियल सेंस का ट्रेनिंग होता है। लेकिन जो एनएससी बीएससी के एजुकेशन विंग्स हैं, उनके जो प्रोग्राम्स है, डेफिनेटली यू कैन टॉक अबाउट, यू कैन अवेल दोज एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर योर theoretical understanding purpose as well. वैष्णव जी का सवाल है कि कौन से शेयर हमको लेने चाहिए। मैंने एग्जांपल के द्वारा भी बताया था कि नाम तो मैं डेफिनेटली ले लूंगा, लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा राइट सेक्टर है, कौन सा राइट इंडस्ट्री है। हमने कहा था कि हम एज अ कंज्यूमर जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कंपनीज डेफिनेटली हमारे लिए अच्छे कंपनीज हो सकते हैं। जैसे आपने जवाब दिया था कि ये मेडिसिन और सैनिटाइजर्स हम यूज करने वाले हैं, तो वो मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनीज आपको डेफिनेटली प्रॉफिटेबल फ्यूचर में साबित हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन यूटिलिटी वी कैन डिसाइड which companies are good for us and which companies are not good for us. तो कंपनी का नाम तो नहीं, लेकिन सेक्टर डेफिनेटली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पैंडेमिक में अगर हम सोच रहे हैं तो हमें पता है कि कौन से सेक्टर अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वो सेक्टर में हमको बचना चाहिए। जो सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं, फ्यूचर में भी अच्छा करने वाले हैं, वो सेक्टर्स हमको सिलेक्ट करने चाहिए। So I guess I have answered all the questions. Right, sir. Right. Thank you, Atul sir, for a great session. I remember one dialogue from movie Scam 1992, which biography of Mr. Harshad Mehta. Risk hai to ishq hai. So I request all the participants, please open your Demat account and make some profitable shares and gain about the knowledge about the market. In YouTube, most of the videos are available. You can search and log in to this account, and you can financial more sound.
Thank you once again, Atul sir. I request to behalf of our college come physically after pandemic is over. Request to Atul sir from our college to come our college. Now I request to Dr. Milind Shirvate sir, IQSC coordinator, Shankarlal Khandelwal College, Akola. Over to Shirvate sir. Yes, thank you, Piyush. Am I audible? Yes. Yes, sir. You are audible. Yeah. Very much thankful to the Department of Commerce. First of all, I want to tell you one thing that I received one call initially from Mr. Atul Sathe sir. Let me start the journey of this workshop before going to thank. I received one call from Mr. Atul Sathe sir and one of his employee that we are going to organize such and such workshop. So I said that yes, we are ready. But how much fees you are taking for this workshop? Because nowadays we are not getting any fees from from students to organize such a workshop. So he said it is free of cost, sir. Just we need 40 delegates and 40 say participants for this workshop to. This is the minimum requirement to organize. So we started this journey and hand over this to the Commerce Department because we are having a very active staff in the Department of Commerce. So I handed over this journey to this program to Mr. Piyush Nalle sir, and he has covered all these things. All you are seeing this on this virtual platform. So first of all, on the behalf of Shankarlal Khandelwal College, IQAC Internal Quality Assurance Cell and Department of Commerce, we have organized jointly this venture, this workshop on wealth awareness program, a complete guide for financial planning, tax planning, and investing for a peaceful retirement. So on the behalf of IQAC, I am very much thankful to Diksha Gogia ma'am and also a resource person, Mr. Atul Sathe sir, for organizing and giving your valuable time and valuable speech to our all staff members. See, in the IQAC, we are going to face NAC every 5 years. So we need to conduct some welfare schemes or welfare measures or welfare programs for teaching and non-teaching staff. So I thought that why not we focus on the financial awareness for all the staff. So in the as a part of initiative from IQAC, we organize this, sir. So we are very much thankful to your team, sir. Whenever you will get any need or any platform, we are ready to help with you, sir. So thank you very much. I am very much thankful to one of our participants who is Mr. Gopalji Khandelwal. He is hearing us from starting of this program. He is secretary of Shikshan Prasarak Mandal. I am very much thankful to Honorable Gopalji who joined for this particular webinar on the behalf of IQAC. Then I am very much thankful to our IQAC chairman who is the principal Dr. Jagdish Sabu sir for inaugurating this webinar and spending his valuable time with us. I am very much thankful to all my colleagues and participants. And I find total 63 delegates and participants, including teaching, non-teaching staff of our college and other colleges too, including students. And they are actively involved in the discussions and question answer sessions in this webinar. So very special thanks to all the delegates and participants for making this webinar a successful one. I'm very much thankful to my colleague, Mr. Dr. Piyush Nalle sir, for coordinating all the activities. Lastly, on the behalf of our organizing team and our chairman, Principal Dr. Jagdish Sabu sir, I declare this webinar is over and the feedback link will be shared soon on this Piyush sir. Hai na? You had to make one announcement. Yes, regarding already shared in chat box, sir. okay, the feedback link is already shared in the chat box.
So all are requested to fill the feedback link and get your certificates and start investing by taking suggestions from the respective members. So on the behalf of organizing team, I declare this function is over. Thank you. Thank you very much. Over to you, Dr. Piyush Nalle, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Atul sir, and thank you, advisory organization, to a great webinar. Thank you, Manana. Yes, thank you. Thank you, sir.